السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق حل کر لیا ہوگا، اور ابھی انشاءاللہ اس سبق میں ہم اسی مشق کو حل کریں گے جو ہم نے گزشتہ سبق میں آپ کو بطور اسائنمنٹ کے دی تھی۔ تو الحمدللہ اب آج ہم اس کے مطابق اس کو حل کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال یہ تھا، فعل مضارع کے وہ صیغے بتائیں جن کے آخر میں پیش آتا ہے۔ تو ہم ان صیغوں کو پڑھ دیتے ہیں، جیسے ینصر، وہ مدد کرتا ہے۔ اب ینصرانی پیش نہیں ہے، ینصرون پیش نہیں ہے، تنصر پیش ہے، اسی طرح تنصرانی، ینصرنا، پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ تنصر، پھر یہی صیغہ آ گیا دوسری مرتبہ تنصر، پھر تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصر، ننصر، انصر، انصر۔ یہ انصر الف جو ہے یہ متکلم کے لیے ہے، اور ننصر یہ جمع متکلم کے لیے۔ انصر کا معنی ہے جہاں بھی شروع میں الف لگا ہوگا، یعنی جو اصطلاح سمجھا، جیسے عالم میں جانتا ہوں، نالم ہم سب جانتے ہیں، جس کے آخر میں پیش آتی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ فعل مضارع میں نون اعرابی والے صیغے بتائیں۔ وہ نون جو اعراب والا نون ہوتا ہے، یعنی جس نے آگے اس کے اگر اس پر کوئی ایسا عامل آ جائے، عمل کرنے والا حرف آ جائے گا تو وہ گر جائیں گے۔ تو وہ 7 صیغے ہیں۔ وہ کتنے صیغے ہیں؟ 7 صیغے ہیں، جیسے میں نے اس وقت تھوڑا سا آپ کو بتا دیا تھا کہ 4 تو تثنیہ کے، جیسے ینصر ہے، ینصرانی، ینصرانی، ایک صیغہ کیا ہوگا؟ ینصر، ینصرانی۔ اب یہ نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے۔ نون اعرابی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اس کے شروع میں کوئی عامل آ جائے گا، جس کو فعل مضارع کا عامل کہتے ہیں، تو یہ نون گر جاتا ہے۔ جیسے اگر اس کے شروع میں لفظ لم ذکر کرتے ہیں تو یہ بنے گا لم ینصرا۔ یہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ یہ دو جو اعراب آتے ہیں، جو حروف شروع میں آتے ہیں، ان سے ترجمے میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے اور لفظی تبدیلی کیا ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو لم ینصرا، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ دوسرا صیغہ کون سا ہے؟ تنصرانی، ینصرانی، تنصرانی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو تنصرانی والے صیغے ہیں، جن کے شروع میں الف مناتا تثنیہ کے جو صیغے ہیں، یہ 4 ہیں: ینصرانی، تنصرانی، تنصرانی، تنصرانی۔ تنصرانی کے وزن 3 ہیں۔ وہ 3 صیغے ہم کیوں کہتے ہیں؟ ایک تنصرانی تثنیہ مؤنث غائب، ینصر، ینصرانی، یہ جو ینصرانی یہ تثنیہ مذکر غائب ہو گیا، پھر ینصرونا وہ سب مرد مدد کریں گے، اور تنصر وہ ایک عورت مدد کرے گی، تنصرانی وہ 2 عورتیں مدد کریں گی، تنصرانی۔ اسی طرح یہی صیغہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے، تنصرانی تم 2 مرد کرو۔ اسی طرح یہی صیغہ تنصرانی تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنصرونی، تنصرانی کے ہم 3 ترجمے کر سکتے ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے، ہم اس کے 3 ترجمے کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سب سے آسان ہے کہ لفظ ایک ہے، اس کو ہم تثنیہ مؤنث غائب میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی لے کے آ سکتے ہیں، تثنیہ مذکر، لیکن یہ عمومی طور پہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے آتا ہے قرآن میں، اور احادیث میں زیادہ تر اس کے لیے آیا ہے۔ بہرحال یہ لفظ دونوں کے لیے اس میں ایک گنجائش ہے، وہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں یہ کتنے ہو گئے؟ 8 + 3، یہ 4 ہو گئے، اور کتنے ہو گئے؟ یہ 4 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ینصرونا، ینصرونا، تو اس میں بالکل معمولی سے فرق کے ساتھ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو، تعلمون تم سب جانتے ہو، تسمعون تم سب سنتے ہو، تکریمون تم سب اکرام کرتے ہو۔ تو یہ تنصرون، ینصرون اور تنصرون یہ کتنے ہوں گے؟ 2، 1 اور 3 4 اور 2 کتنے؟
कितने हो गए, 4 को 6। अब एक सीगा रह गया, वो कौन सा रह गया, तंसुरीना, वाहिद मुन्नस हाजिर, वाहिद मुन्नस हाजिर, तंसुरीना। तो 4 तस्निया गए, यंसुरानी, यंसुरूना, यंसुरानी, तंसुरानी, 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 यंसुरूना, तंसुरूना और तंसुरीना। ये 7 सीगे हमारे कौन से हो गए, नून एराबी वाले सीगे हो गए। इनको कहते हैं नून एराबी। ये इनके आखिर में जो नून आ रहा है, ये सब ये नून एराबी। नून एराबी का मतलब है कि एराब यानी इसके आखिर की हरकतों को जाहिर करता होता है। तो ये नून इंशाल्लाह हम इसके मुतालिक तफसील से आगे पढ़ेंगे चल के। तो ये एराब को जाहिर करता है, तो जिस वक्त अब इस पर एराब आते हैं तो ये नून गिर जाता है। अब आगे जो सवाल नंबर 3 था वो गिरदान करनी थी। ये 3-4 सीए दिए गए थे, इसकी आप थोड़ी सी मशक कर लें। जैसे यजतनिबू, यजतनिबानी, तजतनिबानी, यजतनिबूना, तजतनिबूना, यजतनिबना, तजतनिबना। इसी तरह अजतनिबू, नजतनिबू। तो ये इसी तरह यक्तुबू वो लिखता है, यक्तुबानी वो 2 लिखते हैं, तक्तुबानी तुम 2 लिखते हो, तुम 2 औरतें लिखती हो, तुम 2 मर्द लिखते हो, या वो 2 औरतें लिखती हैं तक्तुबानी। यक्तुबूना वो सा मर्द लिखते हैं, तक्तुबूना तुम सा मर्द लिखते हो। यस्मऊ, यालमू, यमनऊ, यमनऊ का माना रुकना, यालमू वो जानता है। तो इस तरह ये भी आपने सीखे। उसके बाद सवाल नंबर 4 ये था, नून एराबी कौन कौन से सीगों में मफ्तू और कौन कौन से सीगों में मकसूर होता है। मफ्तू का मतलब होता है जिस पर ज़बर आती है, और मकसूर का मतलब होता है जिस पर ज़ेर आती है। तो ये अब हमने इन्हीं में से देखे हैं। यंसुरानी आखिर में क्या है, ज़ेर है। तंसुरानी इसके आखिर में भी ज़ेर है। अच्छा, यंसुरूना, तंसुरूना, इन दोनों के आखिर में क्या है, ज़बर है। और तंसुरीना इसके आखिर में ज़ेर है। तो लिहाजा 4 के 4 ज़ेर वाले हैं, मकसूर वाले हैं, और 3 मफ्तू वाले हैं, 3 हरफ मफ्तू वाले हैं। तो अब ये भी मालूम, मकसूर जिनके नीचे ज़ेर है, 4 हरफ ऐसे आते हैं तस्निया की चीज़ें जिनके ज़ेर आती है, और 3 ऐसे हैं जिनके ज़बर आती है, जैसे यंसुरूना, तस्बिरूना, इसके आखिर में बरकत होगी है। उसके बाद अगला सवाल है, ये चंद जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों का आपने तर्जुमा करना। सबसे पहला लफ्ज़ जो दिया गया है ये ला यक्तुबूना, ला यक्तुबूना। तो ला का क्या तर्जुमा होगा, नहीं। यक्तुबूना लिखते हैं, वो सब मर्द नहीं लिखते हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो सब मर्द, तो वो हम इधर से यक्तुबूना शुरू में या है। अच्छा, सब मर्द ये हमें कैसे पता चला, ये पता चला वाव नून से, वाव नून से हमें पता चला मर्द है। वो सब मर्द लिखते हैं, ला यक्तुब नहीं लिखते। यस्माउना तो वाव नून आखिर में आ गया तो सब पता चल गया मर्द है, बहुत ज़्यादा मर्द है। अब गायब है या हाजिर है, इसको पता कैसे चलेगा, या से पता चलेगा। और समिया का माना हमें मालूम है, समाज से है, सुनना। तो वो सब मर्द सुनते हैं। तालमीना, तालमीना। तो अब ये इसके आखिर में लामत आप देखिए, इसके आखिर में जो ये नून है, नून है तालमीना, और नून के पीछे वाला हरफ क्या है, या साकिन है। तो मैंने एक असूल बताया हुआ है, अब अगर आप देखेंगे कि अगर नून से माकबल हरफ साकिन हो, अभी आपने देखा तंसुरीना, तंसुरीना, अगर आप गिरदान करें यालम, यंसुर, यंसुरान, यंसुरन, तंसुर, तंसुरान, यंसुरना, यंसुरना, तंसुर, तंसुरान, तंसुरना, और तंसुरुना, तंसुरीना, तंसुरीना। तो तालमीना वो पेश है, और ये बाहर, और यंसुरना, तंसुरना, यंसुरना, तंसुरना। तो वो इसमें ये लफ्ज़ आ जाए तालमीना, जिसके माकबल या आ जाए, जिसके माकबल या आ जाए, क्योंकि इसके हरूफ कैसे हैं, आइन लाम मीम, आइन लाम मीम, इसके माकबल या आ जाए और वो या साकिन हो सलासी मुजर्रद में, तो ये आपने ये अलामत याद रखनी है कि वाहिद मुन्नस गायब की अलामत होगी। और जमा मुन्नस गायब में इसी जो हरूफ हैं, इन हरूफ में से ही आखिरी हरफ होगा, जो आइन कलमा होगा, उस आइन कलमे का आखिरी हरफ उसके आखिर में आएगा। जैसे नसरा, नसरा। अब जब फिर मुजारे का जमा मुन्नस गायब का बनाएंगे तो शुरू में या लगेगा और आखिर में ये रा साकिन हो जाएगा,
यंसुरना, यंसुरना और तंसुरना। और गायब के मोनस की लामत क्या है? तंसुरीना, तंसुरीना। अब ये देखिए या का इजाफा हो गया, तो जो या का इजाफा हुआ है सिर्फ वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे, सिर्फ वाहिद मुअन्नस के सीगे में होता है, वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे में। दूसरे सीगे में ये या का इजाफा नहीं होता। तस्मईना, तंसुरीना, तालमीना, जो या आ रही है, ये या नून आपने अलामत याद रखनी है कि ये जो या और नून, या और नून, ये होगा साकिन और इसके ऊपर होगी जबर। तो ये इससे माकबल या साकिन और इसके ऊपर नून के ऊपर जबर हो। तो ये आपने याद रखनी है कि वाहिद मुअन्नस गायब सुलासी मुजर्रद के अंदर ये अलामत इसकी मुस्तकिल अलामत है। तो उसके बाद हम आते हैं अपने उन सीगों की तरफ जो कि हम उर्दू में आपको दिए थे इससे गुज़श्ता सबक में हम लिखते हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया था, शुरू में नून होगा, नक्तुबु, वो सब मर्द जानते हैं, यालमुना। अच्छा, मैं अगर यही सवाल करूँ तुम सब मर्द जानते हो, तो तालमुना। मैं रुकता हूँ, अकिफु, मैं सुनता हूँ, अस्माउ, मैं जानता हूँ, आलम। तो और मैं चलता हूँ, अमशी, हम जानते हैं, नालम, वो जानता है, यालम। वो सब मर्द जानते हैं, यालमुना। तुम सब मर्द जानते हो, तालमुना। वो सब औरतें सुनेंगी। अब देखिए वो सब औरतें, वो एक औरत नहीं है, वो सब औरतें सुनेंगी। तो वो सब के लिए या आ जाएगा शुरू में, वो या सुनेंगी, यस्म। तस्माना, तस्माना, जो समिया का ये जो हर्फ है, समी आखिर में क्या है? आइन। तो आइन साकिन होगा, आइन साकिन होगा, यस्माना। वो एक औरत रोकेगी, तो तू एक औरत रोकेगी, तकिफ। अच्छा, तुम दो मर्द लिखोगे, तक्तुबान, तुम सब औरतें सुनोगी, तुम सब औरतें सुनोगी, तस्माना, हम सब रुकते हैं, नकिफु, मैं एक औरत सुनूंगी, अस्माउ, तुम एक औरत सुनोगी, तस्माउ। और इसी तरह वो दो मर्द सुनते हैं, यस्मानी, तुम दो मर्द सुनते हैं, तस्मानी। वो दो औरतें लिखती हैं, वो दो औरतें। तो और वो दो औरतें हो या तुम दो औरतें हो, इसके लिए क्या आता है? तक्तुबानी, तुम दो मर्द लिखते हो, इसके लिए भी आता है। अगर ये कहूँ कि वो दो मर्द लिखते हैं, तो क्या आएगा? यक्तुबानी, तुम सब मर्द छोड़ोगे, तुम सब। जब तुम सब के लिए आ गया तो इसके लिए शुरू में ता आएगी, आखिर में वाउन आएगा, और छोड़ने की अरबी बीच में लिखेंगे तत्रुकूना, तत्रुकूना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह मुझे इससे आगे हम कैसे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।